Hello students, welcome to class 11th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today class 11th chemistry part 1 chapter number is 1. It means some basic concept of chemistry. This is the revision video lecture. Okay students. So what is the deleted topic in this chapter? Nature of matter, law of chemical combination, Dalton atomic theory, concept of element, atoms and molecule. And what is the deleted exercise question in this chapter regarding these topics like 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27 and 31. ये क्वेश्चन हमारे इस सेशन 2020-21 में डिलीट हो गए. ओके, सो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर? लाइक वन, जनरल इंट्रोडक्शन. It means importance and scope of chemistry. Please open the NCERT book and come to the page number first. You have found the definition of chemistry. So what is the definition of chemistry? Chemistry is the branch of science in which study of composition, structure, properties and interaction of matter occur. इट मीन हम कुल मिला के केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ही स्टडी करेंगे. लाइक व्हाट इज द कंपोजिशन, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, क्या उसका परसेंटेज है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड एनवायरनमेंट में क्या उसका इंटरेक्शन. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 2. हियर वी नो वेरी वेल व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ केमिस्ट्री. यू हैव फाउंड ऑन द पेज नंबर 2. रसायन शास्त्र, रस क्रिया, रस तंत्र, रस विद्या. दिस इज द अनदर नेम ऑफ केमिस्ट्री. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 4. यू हैव फाउंड द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो क्या इंपॉर्टेंस है? वी नो वेरी वेल देयर आर मेनी एस्पेक्ट एरिया लाइक डाइस, पॉलीमर्स, ड्रग्स, soap and detergent. And in the medicinal chemistry, here are the medicine like cisplatin and taxol are used in the कैंसर थेरेपी. अगर कैंसर थेरेपी में हम बात करें कौन सी मेडिसिन को हम यूज करते हैं तो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल. एंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन. इट मीन्स एड्स. एड्स की रीमेडिसिन में बात करें कौन सी मेडिसिन होगी? कैपिटल AZT. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? यू हैव फाउंड ऑन द पेज नंबर 4. एजिडोथाइमिडिन. ओके, सो दिस इज द अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, general introduction and importance and scope of chemistry. Now come to the second point, atomic and molecular masses. So you can come to the page number 16. It means what is the definition of atomic mass? Mass of a atom. एक एटम का मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा. And what is the unit of atomic mass? AMU या simply U. So what is the full form of AMU? Atomic mass unit. And what is the definition of AMU? You have found on the page number 16, right hand side bottom. It means 1/12 mass of a atom of carbon 12. एक कार्बन 12 के एटम का 12th पार्ट क्या कहलाएगा? AMU. यहाँ बेसिकली U यूनिफाइड मास भी हम इसको कह सकते हैं. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1U? 1.66 into 10 to the power minus का 24 ग्राम. And next, what is the molecular masses? Mass of a molecule. It means molecular mass is the sum of atomic mass of element present in a molecule. एक molecule में जितने भी element present है उन सबके atom का हम atomic mass का sum कर देंगे तो we can found the molecular masses. And molecular masses can calculate by the addition of atomic masses. तो आपको atomic mass learn होनी चाहिए. तो एटॉमिक मास के टेबल पेज नंबर 240 पे गिवन है. प्लीज कम टू द पेज नंबर 240. यू हैव फाउंड द अपेंडिक्स सेकंड. हियर द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम 27 and unit is U, unified mass.
boron atomic mass is 11. So you should learn this table for the calculate of molecular masses. Okay, there are the one important term formula unit mass. तो फॉर्मूला यूनिट मास जो है इट मीन अगर कंपाउंड आयनिक है, इट मीन आयनिक कंपाउंड का मतलब इट इज फॉर्म बाय द आयंस, इट मीन्स केटायंस एंड एनायंस. तो इट मीन्स अगर कंपाउंड आयनिक है तो फिर मॉलिक्यूलर मासेस की जगह हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास. लाइक एग्जांपल NaCl K2SO4. तो हम मॉलिक्यूलर मास में लिखकर वहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मास लिखेंगे. कंसेप्ट सेम है, एलिमेंट के एटम का सम करना है एंड यूनिट क्या रहेगी, U रहेगी. ओके, एंड इन द लास्ट मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस. तो मोलर मासेस का मीन्स मास ऑफ अ मोल ऑफ सब्सटेंस. एक मोल सब्सटेंस का मास ही क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, ग्राम पर मोल. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल कंसेप्ट, इट इज द काउंटिंग यूनिट इन द केमिस्ट्री. सो कम टू द पेज नंबर 18. आप पेज नंबर 18 पे आएंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में डेफिनेशन मिलेगी. अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस it contain the number of particle as in the 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. इट मीन एक मोल सब्सटेंस में उतने ही पार्टिकल प्रेजेंट है जितने कि 12 ग्राम कार्बन 12 में प्रेजेंट है. ओके, तो इट मीन कार्बन 12 को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म में हमने लिया है और 12 ग्राम कितना मास लिया है, 12 ग्राम. और 12 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 एंड वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 0.012 kg. Okay, तो इन द मोल डेफिनेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कितना वैल्यू लिया है हमने, 12 ग्राम या 0.012 किलोग्राम लिया. एंड हियर आर द टू फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड सेकंड फॉर्मूला इज मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. वी हैव डिस्कस इन द 9th क्लास एंड 11th क्लास प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. तो इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, इट मीन 1 मोल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, एवोगैड्रो नंबर कहलाएंगे. एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नेम है. वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, तो इट मीन्स मोल के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दोनों फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड मोल, सो मास की हम बात करें, एक मोल का जो मास है वो क्या कहलाएगा, मोलर मास. और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल का कहलाएंगे, एवोगैड्रो नंबर कहलाएंगे. ओके, सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्टाइचोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइचोमेट्री. सो दिस following points we will discuss on the whiteboard. Okay student, then come to the whiteboard. Now percentage composition topic, come to the page number 18. It means we have discussed in the 9th class also. What is the formula of percentage composition? It means mass of element in a compound, कि कंपाउंड में एलिमेंट का कितना मास है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास एनसीईआरटी में मोलर मास गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, इट हैज द यूनिट ओनली U. जबकि मोलर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल हो जाएगी. डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. तो इट मींस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन. इट मीन एलिमेंट में, कंपाउंड में एलिमेंट का कितना मास है और डिवाइड हमने कर दिया है मॉलिक्यूलर मास से, परसेंटेज है, सो दैट्स व्हाई हमने मल्टीपल 100 कर दिया. तो इट मीन इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द mass percentage of different element present in a sodium sulfate. तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हम देखें, Na2SO4. तो इट मीन जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला ही लिखना है. फॉर्मूला हम लिख चुके हैं यहाँ पे. और सोडियम सल्फेट का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, किसका निकालेंगे, Na2SO4. तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास
पेज नंबर आप 240 पे दे सकते हैं 23। आफ्टर डेट सल्फर है 8 कर देंगे क्योंकि सम ही होता है। सल्फर का एटॉमिक मास 32, आफ्टर डेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे 4, तो 16 मल्टीपल बाय 4। इसको हम सम करेंगे तो वी कैन ऑब्टेन द 142 U, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यूनिट क्या रहेगी U रहेगी। अब परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज सोडियम, तो क्या रहेगा मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड कितना है मास 2Na, इट मीन 2 मॉलिक्यूल हैं तो इट मीन 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीपल कर देंगे हम 23 से। सोडियम का मास एटम का 23 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 142 मल्टीपल 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम। अनदर परसेंटेज ऑफ सल्फर, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ सल्फर इज 32 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास 142 into 100, and in the last percentage of oxygen, mass of oxygen in the compound 16 multiplied by 4 because 4 atoms are present, तो 16 multiplied by 4 divided by 142 और multiple 100 कर देंगे तो we can easily calculate the percentage composition in a compound। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे परसेंटेज सोडियम का कितना आएगा 32.4% एंड सल्फर का कैलकुलेट करेंगे तो 22.6% एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 45%। तो आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द दिस क्वेश्चन। आफ्टर डेट नेक्स्ट टॉपिक इज empirical formula and molecular formula. Empirical formula means in this formula only simplest whole number of atom of element present in this formula, and molecular formula is the exact number of atom present in a molecule। like हम example की बात करें तो example में like this C6H6, this is the formula for benzene। किसका फॉर्मूला है ये? बेंजीन का। और बेंजीन में नंबर ऑफ कार्बन के एटम कितने हैं 6, हाइड्रोजन में भी 6, तो दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड हाउ कैन यू ऑब्टेन द एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रहेगा? ओनली सिंपलेस्ट होल नंबर, इट भी जो 6 है ये कट जाएगा, सिंपली जो CH मिलेगा 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज ये भी क्या है बेंजीन ही है, लेकिन बेंजीन का ये क्या रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रहेगा ये? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। So what is the relation between molecular formula and empirical formula? Molecular formula equal to empirical formula multiple by n। जो n जो हमने यहाँ पे 6 को कैंसिल किया है रेशो बनाने के लिए, वो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीपल कर देंगे 6, तो वी कैन ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाइक दिस। CH को मैं 6 से मल्टीपल कर दूंगा, इट में वी कैन ऑब्टेन द अगेन C6H6। तो ये जो मल्टीपल हमने किया है 6, दिस इज नॉन एज द n। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आफ्टर डेट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टोइचियोमेट्री। ओके, now come to the page number 20, stoichiometry and stoichiometric calculation। so here is the word stoichiometry। what is the meaning of this? it means stoichio means element and metry means measure। element का measurement करेंगे like this, equation में ले लिया यहाँ पे CH4 react with 2 oxygen, it means combustion हो रहा है मीथेन का, and form the CO2 plus 2H2। तो in this reaction here CH4 में क्या मल्टीपल हो रहा है 1, O2 में 2, CO2 में 1 and H2O में 2। तो this is the stoichiometric coefficient of this reaction। here 1 is the stoichiometric coefficient of methane and 2 is the stoichiometric coefficient of oxygen, 1 is the stoichiometric coefficient of CO2 and 2 is the stoichiometric coefficient of water। so what is the meaning of this? it means 1 molecule of methane react with 2 molecule of oxygen to form 1 molecule of carbon dioxide and form 2 molecule of water vapor। yeah, it means another way 1 mole of methane
react with 2 mole of oxygen form 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of H2. This is the stoichiometric coefficient. Okay. Now come to the limiting reagent. What is the meaning of limiting reagent? It means the reagent which has consumed the first. जो reaction में पहले consume हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? Limiting reagent कहलाएगा. तो it means like this, reaction N2 react with 3H2 form ammonia. What is the formula of ammonia? NH3. So if in the question here number of mole of nitrogen is 10 and number of mole of hydrogen is 40 moles. So who is the limiting reagent in this reaction? कौन होगा limiting reagent? अगर आपको ये given है, क्या given है कि 10 मोल जो है नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो इसमें लिमिटिंग रीजन आप हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इट मीन्स क्या फॉर्मूला रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन, जो हमारे को दिया हुआ है मोल्स, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, okay, which has lesser ratio, it means it is the limiting reagent. जहां पे जो रेशियो हमारा कम मिलेगा वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा. तो इट मीन्स ये गिवन है मोल्स, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड कर देंगे उसके रेस्पेक्टिव स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. इट मीन्स 10 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाइट्रोजन का 1. इट मीन्स 10/1. 40 मोल्स हाइड्रोजन के हैं एंड डिवाइडेड बाय द स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द 3. तो 40/3. तो वी कैन इजीली एज्यूम दैट कि कौन सा ज्यादा होगा. इट मीन्स कौन सा ज्यादा है? 40/3 इज द ग्रेटर एंड 10 इज द लेसर. तो इफ इट इज अ लेजर, जो लेजर होगा वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहाँ पे रेशियो ये कम मिला है. किसका रेशियो है ये? नाइट्रोजन का. तो इन दिस रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा. ओके. नाउ हेयर आर द सम फॉर्मूला. कुछ फॉर्मूले दिए हुए आपको कंसंट्रेशन के. कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? नंबर 1 मास परसेंटेज. मास परसेंटेज. और ये फॉर्मूले आपने 9th क्लास में भी स्टडी किए थे. फॉर्मूला है पेज नंबर 23. मास परसेंटेज. इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीपल कर देंगे 100 से, बिकॉज इज अ परसेंटेज. परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल कर देंगे 100 से. तो इट मीन सॉल्यूशन है और वी कैन इजीली एज्यूम दैट सॉल्यूशन जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा. और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा. इट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. वी हैव डिस्कस इन द क्लास 9th ऑल्सो. सेकेंड फॉर्मूला इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. इट मीन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट. सपोज वन कंपोनेंट को हमने क्या बोल दिया है? ए बोल दिया है. डिवाइडेड बाय टोटल्स मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है उनके टोटल हम कर देंगे और नंबर ऑफ मोल में हम उसको डिवाइड कर देंगे. तो जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम किससे नोट करते हैं? एक्स से. ए का निकाल दिया यानी क्या हो जाएगा? एक्स से हो जाएगा. एक्स इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए. मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. एन ए डिवाइडेड, सपोज करो सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. इट मींस एन ए प्लस एन बी. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. सिमिलर सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं. एक्स बी इक्वल टू एन बी, बी का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल, अगर उसमें 2 ही कंपोनेंट है. ठीक है. एन ए प्लस एन बी. अब अगर मैं दोनों को सम कर दूंगा एक्स ए प्लस एक्स बी, तो इट मीन्स वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू 1. बिकॉज यहां पे अगर एलसीएम लेंगे एन ए प्लस एन बी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी. तो वी कैन इजिली ऑब्टेन द 1. इट मीन्स सम ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी. इसकी ऑलवेज वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है. ठीक है. आफ्टर नंबर थर्ड फॉर्मूला मोलरिटी. मोलरिटी रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एम एंड फॉर्मूला इज
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो नंबर ऑफ वॉल्यूम हम लेंगे, इट जो वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, वो हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, इन लीटर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल एम। एंड इन द लास्ट फॉर्मूला नंबर 4, मोलरिटी represented by the small m. Okay, formula is number of moles of solute divided by mass of solvent, and we can easily assume that what is the meaning of solvent, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ये इन केजी। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें हमारे क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 which is depend on the formula of molarity. It means calculate the mass of sodium acetate. फॉर्मूला दिया हुआ है आपको सोडियम एसिटेट का CH3CONA, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है आपको मास रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, यानी वॉल्यूम गिवन है आपका सॉल्यूशन में 500 ml, उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.375 मोलर इक्वल्स, यानी मोलरिटी गिवन है आपको 0.375 और मोलर मास भी गिवन है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, गिवन से। क्या क्या गिवन है हमारे पास, मोलरिटी गिवन है 0.375, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 500 ml, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर में। हाउ कैन यू कन्वर्ट अ लीटर, डिवाइडेड बाय 1000, इट मींस 1/2 लीटर। आफ्टर डेट नंबर ऑफ मोल की हम बात करें तो वी कैन इजीली दैट कि एन जो है नंबर ऑफ मोल, वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास किसका हो जाएगा, गिवन मास ऑफ CH3CONA, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम लिखेंगे, और मोलर मास क्या हो जाएगा, CH3CONA। तो इट मीन एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमारे को ये वैल्यू पुटअप करनी है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, मोलरिटी की जगह हम क्या रख देंगे, 0.375, और नंबर ऑफ मोल की जगह हम क्या रखेंगे, गिवन मास ऑफ, ठीक है ना। तो अगर आप गिवन नहीं बोलना है तो मास ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि तो गिवन है ही नहीं, तो पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, मास ऑफ CH3CONA, यही कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना गिवन है मोलर मास, 82.0245, इट इज अ गिवन। तो ये मैंने नंबर ऑफ मोल की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। आफ्टर डेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन V, ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है, इट मीन्स कितना है यहाँ पे 1/2, तो इट मीन्स 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और मास ऑफ दिस इंप्लाइज दैट मास ऑफ CH3CONA इक्वल टू 0.375 मल्टीपल 82.0245, और ये 1/2 भी कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, इट मीन्स 1/2। तो इट मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द मास ऑफ 15.38 ग्राम। ओके, so this is the formula depend on the molarity formula. Now come to the question number 4 in exercise, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burned. बर्न का मतलब क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, कार्बन बर्न कर रहे हैं, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, CO2, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक क्या है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का भी क्या है 1, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 है। It means 1 mole carbon react with 1 mole of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide. यहाँ it means हम मास में कन्वर्ट करना चाहें तो it means जो 1 mole of carbon होता है उसका मास कितना होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन यानी क्या है यहाँ पे O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम कहाँ से देखेंगे, पेज नंबर 240,
16 मल्टीपल बाई 2 यानी 32 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन से, और फॉर्म कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीपल बाई 2, इट मीन्स 12 प्लस 16 मल्टीपल बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ग्राम में, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फर्स्ट 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन अगर बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा। इट मीन्स ए का आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बी में 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सिन। कार्बन तो 1 मोल है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 32 ना करके 16 कर दिया, तो इट मीन वैल्यू हमने कम कर दी। तो इट मीन्स 32 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है, इसको सम करेंगे तो 44 ग्राम। इट मीन बी लिखना चाह रहे हैं कि सिंस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो इट मीन्स 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, 44 अपॉन 32, और गिवन कितना है यहाँ पे 16 ग्राम। 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कितना प्रोड्यूस करेगी, 44 अपॉन 32 मल्टीपल बाय 16, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा 22, यानी 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा बाय द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विद द 1 मोल ऑफ कार्बन। सी इज अ सिमिलर, उन्होंने कार्बन को 2 मोल कर दिया है, लेकिन ऑक्सीजन तो 16 ही है, तो इट मीन 16 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, 32 ग्राम होगा। तो इट मीन सी का आंसर भी क्या हो जाएगा, 22 ग्राम ऑफ CO2, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज नहीं करी, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, इफ द 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज, हाइड्रोजन रिएक्ट हो रही है ऑक्सीजन से एंड फॉर्म द वाटर H2O, बैलेंस कर देंगे यहाँ पे। तो सिमिलर यहाँ पे हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 एंड वाटर का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2। एंड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम ले लिया, 5, तो आपसे पूछ रहा है वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इट मीन्स 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करेगा, मल्टीपल कर देंगे सिंपल से, आंसर आ जाएगा 10 वॉल्यूम ऑफ H2O। अंडरस्टूड। इन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन अ ग्राम, यानी एक एटम का आपको मास निकालना है। तो जब भी हम इस तरह से लाइन अरेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या रखते हैं, जो कि हमारे को क्या रहता है, गिवन, या जो हम क्या करते हैं, नोन, जो हम जानते हैं वो कहाँ रहेगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और जो पूछ रहा है, जो अननोन है, वो हम कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड। अननोन यानी जो आपसे पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, मास पूछ रहा है, तो मास को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। और गिवन क्या है यहाँ पे, एटम, ठीक है, 1 एटम, एक एटम का आपसे मास पूछ रहा है। तो इट में स्टार्ट कैसे करेंगे, वी नो वेरी वेल, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 का मोलर मास कितना होता है, जो उसका एटॉमिक मास है उसकी यूनिट हम क्या कर देंगे, ग्राम पर मोल लगा देंगे। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 12 ग्राम, ठीक है। तो इट मीन्स एक एटम का कितना होगा, 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23, आंसर किस में आएगा, ग्राम। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक ग्राम में तो एक एटम का ही तो पूछ रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इट मीन्स क्या आएगा हमारे पास, 1.99 into 10 to the power माइनस का 23 ग्राम, यानी एक एटम कार्बन का मास क्या रहेगा, 1.99 into 10 to the power माइनस 23 ग्राम। हाउ कैन यू स्पेल इट, जो नॉन है उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो अननोन है, जो पूछ रहा है उसको राइट हैंड साइड। क्या पूछ रहा है आपसे, मास पूछ रहा है, तो हमने उसको राइट हैंड साइड रखा है, एटम गिवन है तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। देन कम टू द डिजी बोर्ड।
Now come to the question number 3rd in exercise. Question is that determine the empirical formula of oxide of iron. Empirical means simplest whole number ratio, which is the 69.9% of iron and 30.1% by the mass. ठीक है, तो इट मीन्स सॉल्यूशन स्टार्ट हम गिवन से ही करते हैं न्यूमेरिकल में. परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास इक्वल टू 69.9% and percentage of oxygen by mass 30.1%. Then convert to the relative mole. It means moles में convert करेंगे. तो how can you convert it? Percentage of iron by the mass divided the atomic mass of iron. Iron का atomic mass कहाँ से मिलेगा? Page number 240. It means 55.85 से divide करेंगे and we can obtain the 1.25 relative moles. Similarly, relative moles of oxygen. How can you calculate this? 30.1 and divided by the atomic mass of oxygen. So it means this is the value of 1.88. So this is the for the iron and this is for the oxygen. Now convert this the simplest molar ratio. Simplest molar ratio में कैसे convert करेंगे? यहाँ जो ratio है 1.25 and 1.88, इन दोनों में जो smallest value है, ये smallest value क्या है यहाँ पे 1.25, इसी का हम इसी में divide कर देंगे और इसका हम 1.88 में भी divide करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? Simplest मोल रेशियो. इट मीन लाइक दिस 1 and 1.5. तो ये दिस इज द डिजिटल. इस डिजिटल को हमको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 से मल्टीपल कर देंगे. तो अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा एंड वी कैन ऑब्टेन द 2:3. इट मींस द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इन एक्सरसाइज. कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा. लाइक क्लोरीन का मास 35 का, नेचर में अब्यूडेंस 75.77 एंड क्लोरीन 37 एटॉमिक मास का, नेचर में अब्यूडेंस 24.23. तो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू फ्रैक्शनल अब्यूडेंस ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड द मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35. तो ये 35 है, यही इसका मोलर मास होगा, बस यूनिट हम क्या लगा देंगे? ग्राम पर मोल, प्लस फ्रैक्शनल अब्यूडेंस ऑफ क्लोरीन 37 और उसके मोलर मास हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो इट मीन्स यहाँ पे जो फ्रैक्शनल अब्यूडेंस है, इट मीन्स जो 75.77% है उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे. तो ये क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल अब्यूडेंस. टोटल तो 100 ही होगा ना, परसेंटेज 100 से निकालना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे. और उसका मोलर मास 35 का गिवन है यहाँ पे 34.9. इट मीन्स ऑलमोस्ट 35 ही रहेगा. सिमिलरली प्लस फ्रैक्शनल अब्यूडेंस ऑफ क्लोरीन 37, जो अब्यूडेंस गिवन है यहाँ पे 24.23, डिवाइड कर देंगे 100 से, टोटल परसेंट 100 ही रहेगा और मल्टीपल कर देंगे उसको 37 से. ये ऑलमोस्ट 37 है. तो वी कैन कैलकुलेट दिस 35.5 U. दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. I will suggest you that go through by NCERT book also. Thank you, students.